आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज टीवी में आपका खैर मकदम है। मैं आपका दोस्त सैयद अफरोज। आइए देखते हैं कुछ खबरें। जीएचएमसी कमिश्नर रोनाल्ड रोज ने जीएचएमसी के तहत कायम करदा अभय हस्तम की दरख्वास्तों के मराकज़ का मुआयना किया। हमने तमाम इंतजामात कर लिए हैं ताकि शहर के मकीन अभय हस्तम स्कीमों के लिए दरख्वास्त दे सके। 150 वार्ड्स में 650 मराकज़ भी कायम किए गए। हमने एक मरकज़ में 4 काउंटर कायम किए हैं और दरख्वास्तें कबूल कर रहे हैं। कल तक 5,69,753 दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी है। उम्मीद है कि आज भी मज़ीद दरख्वास्तें आएंगी। दीगर दरख्वास्तें 71,326 मौसूल हुई। हमने 40 लाख दरख्वास्तें प्रिंट की है ताकि हर एक को दरख्वास्त फॉर्म मिल सके। हैदराबाद में तेलुगु, उर्दू, अंग्रेज़ी ज़बानों में दरख्वास्तें दस्तयाब है। दरख्वास्तें फ़रोख्त करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 31 दिसंबर और 1 जनवरी की छुट्टी की वजह से 2 दिन तक दरख्वास्त कबूल नहीं की जाएगी। दोबारा दरख्वास्तें 2 जनवरी से 6 जनवरी तक नामज़द काउंटर्स पर कबूल की जाएंगी। रोनाल्ड रोज, कमिश्नर जीएचएमसी ने बताया। ప్రజాపాలన కార్యక్రమం చాలా బాగా జరుగుతున్నాయి। ఇవాళ 3వ రోజు కార్యక్రమం కూడా చాలా చక్కగా జరుగుతున్నాయి। మన జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో మొత్తం 650 కేంద్రాలు మనం ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగినాయి కంటోన్మెంట్తో కలుపుకొని। సో ఒక్కొక్క కేంద్రంలో కూడా మినిమం 4 కౌంటర్ ప్లస్ క్రౌడ్ని బట్టి 10 కౌంటర్ కూడా పెట్టుకుంటున్నాము। ప్లస్ మనకు సరిపడా మనకు అప్లికేషన్ ఫామ్స్ దాదాపు 40 లక్షల అప్లికేషన్ ఫామ్స్ అన్ని చోట్ల ఇవ్వడం జరిగినాయి। ప్రతి కౌంటర్ దగ్గర కూడా మన దగ్గర అప్లికేషన్ ఫామ్స్ దొరుకుతున్నాయి। సో కొన్ని చోట్ల మనకు ప్రైవేట్ వాళ్ళు 30 రూపాయలు, 50 రూపాయలు, 100 రూపాయలు అమ్ముతున్నారని దగ్గర మా దృష్టికి వచ్చినాయి। సో మనం మొత్తం పోలీస్ వాళ్ళతో కలుపుకొని ఆ మీ సేవా సెంటర్స్ కావచ్చు, జెరాక్స్ సెంటర్స్ కావచ్చు, దానందరినీ కూడా సందర్శించి వాళ్ళకు వార్నింగ్ ఇవ్వడం, కొన్ని చోట్ల దొరికిన చోట్ల పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇవ్వడం, ఇవన్నీ కూడా చేయడం జరిగినాయి। ప్లస్ మన దగ్గర అన్ని ఆ ఫామ్స్ ఇక్కడే ప్రభుత్వమే ఇస్తుంది కాబట్టి అందరూ కూడా ఇక్కడే మన సెంటర్లోనే ఫామ్స్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది। నిన్నదాకా దాదాపు 7,13,000 అప్లికేషన్స్ జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో వచ్చినాయి। ఇవాళ 12 గంటల వరకు మనకు దాదాపు 1.5 lakhs అప్లికేషన్స్ ఇవాళ ఆల్రెడీ వచ్చినాయి। ప్రతిరోజు 3 నుంచి 3.5 లక్షల అప్లికేషన్ మనకు వస్తున్నాయి। రేపు ఎల్లుండి 2 రోజులు మనకు న్యూ ఇయర్ కోసం సెలవు ఉన్నాయి। మళ్ళీ 2వ తారీఖు నుంచి 6వ తారీఖు వరకు కూడా ఈ కార్యక్రమం కొనసాగిస్తాయి। ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర నుంచి కూడా అప్లికేషన్ తీసుకోవడానికి మన యంత్రాంగం సిద్ధంగా ఉంది। ఎట్లాంటి ఏర్పాట్లు చేశారు సార్? సెంటర్ల దగ్గర ఎక్కువ జనాలు ప్రతి సెంటర్లో కూడా మనం ఆల్రెడీ బ్యారికేడింగ్ అనేది ఏర్పాటు చేశాము। విమెన్కి సెపరేట్ కౌంటర్స్ ఏర్పాటు చేశాము। వీల్ చైర్స్, సీనియర్ సిటిజన్స్ కానీ వికలాంగులు వస్తే వీల్ చైర్స్ వాలంటీర్స్ ఏర్పాటు చేశాము। ప్లస్ ప్రతి కౌంటర్లో కూడా ప్రతి సెంటర్లో కూడా మన వచ్చిన వాళ్ళు ఫామ్స్ రాయడానికి వాళ్ళకి ఇబ్బంది ఉంటే వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడానికి కానీ హెల్ప్ డెస్క్ 10 వాలంటీర్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగినాయి। డ్రింకింగ్ వాటర్ సదుపాయాలు మెట్రో వాటర్ బోర్డుతో కలుపుకొని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। అంటే మనకు రెగ్యులర్గా వచ్చే ఈ 5 గ్యారెంటీలకు సంబంధించినవి మనం తీసుకుంటున్నాము। ఇవి కాకుండా ఏమైనా జనరల్ సమస్యలు ఉంటే దానికి సంబంధించి సెపరేట్ కౌంటర్ కూడా పెట్టడం జరిగింది। ప్రతి ఒక్కరు ఎవరు ఏ సమస్య వస్తే కూడా అందరి దగ్గర కూడా మన అప్లికేషన్ తీసుకుని వాళ్ళకి पूरा खानदान एक ही घर में रह रहे हैं तो एक दरख्वास्त फॉर्म काफ़ी है। अगर पेरेंट्स एक घर में, बड़ा बेटा एक घर में, छोटा बेटा एक घर में रह रहे हैं तो उनके घर का नंबर के हिसाब से अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। पिछले 2-3 दिन से सभी लोगों में बहुत शक है और प्रश्न है कि ये फॉर्म अगर भरना है तो मेरे पास रेशन कार्ड नहीं है तो क्या करूं बोल के पूछ रहे। मैं एक ही डाउट आपको क्लियर करूंगी। अगर आपके फैमिली में अगर माँ बेटा और बाप और 2 बेटे को ऑलरेडी रेशन कार्ड है, लेकिन ये दोनों बेटों के इस 10 साल में शादी हो गई, उनके लिए उनको वाइफ आ गई और उनको बच्चे भी पैदा हो गए तो इनका एडिशन अभी नहीं हुआ तो क्या करे। अगर आप सब पूरा फैमिली मेंबर्स खानदान पूरा एक ही घर में एक ही डोर नंबर में रह रहे तो एक ही एप्लीकेशन फॉर्म बस से, ऐसा नहीं है। अगर बेटा बहू और बच्चे दोनों सेपरेट घरों में रह रहे, डोर नंबर सेपरेट है तो एक डोर नंबर को एक एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए। और आपके घर के डिटेल्स जो है, आपके घर के जो बच्चे वो सब है, उनका आधार कार्ड डिटेल्स इसमें लिख के आधार कार्ड जीरोक्स और फोटोग्राफ भर के आप यहाँ सबमिट कर दीजिए, ये काफी है। अगर नया रेशन कार्ड नहीं है तो मार्केट में ऐसे फॉर्म्स बहुत मिल रहे, ये सब में मत जाइए। अगर नया रेशन कार्ड आपके पास नहीं है तो
केवल इस फॉर्म में आप नया रेशन कार्ड चाहिए बोल के रिक्वेस्ट दे दीजिए। अगर आपके पास पेंडिंग ऑनलाइन नंबर है तो ऑनलाइन नंबर ब्रैकेट में दे दीजिए और ये एप्लीकेशन फॉर्म दे दीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म देना ही हमारा फर्ज है अभी तक, क्योंकि इसका गाइडलाइंस अभी तक किसी को भी नहीं पता। ये केवल रेवंत रेड्डी साहब को पता है, अभी तक गाइडलाइंस बाहर नहीं आए। गाइडलाइंस क्या है, ये पूरा भर देने के बाद ये पूरा ऑफिसरों के पास जाके ये ऑफिसर स्क्रूटनी करके आपके घर को फिर वॉलंटियर्स आके आप 2500 चाहिए बोल के टिक किए ना, आपको कैसे देना, आपके फाइनेंशियल कंडीशंस देखते, आपके पास पैसे कितने हैं, घर है कि नहीं है, आप जॉब करते कि नहीं जॉब करते। अगर आपके पास आपके घर में ऑलरेडी पेंशन आ रही है, अगर कोई हैंडीकैप पेंशन हो, सिंगल विमेन पेंशन हो, ऐसा कुछ पेंशन आ रही है तो ये 2500 चालू है। अगर देते कि नहीं देते ये किसी को भी नहीं पता। 500 रुपीज सब्सिडी देते बोले गैस को, ये देने के बाद 200 रुपीज यूनिट करंट फ्री देते बोले, ये देते कि नहीं देते ये भी नहीं पता। एक ही घर में 4 अगर बेनिफिट्स है तो पूरा बेनिफिट्स मिलते हैं कि नहीं मिलते ये सभी किसी को भी नहीं पता। ये गाइडलाइन सिर्फ रेवंत रेड्डी साहब को पता है। सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म देना ही अपना ड्यूटी है। एप्लीकेशन फॉर्म भर के देने के बाद ये स्लिप आपको देते हैं। ये स्लिप आप महफूज रखिए, क्योंकि ये स्लिप को आपको फॉलो करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें जो भरते तब आपका एड्रेस, आधार कार्ड का एड्रेस और आपका मोबाइल नंबर सही लिखिए और परमानेंट वाला लिखिए, बस वही काफी है। ये जो बाद में है कितने महीने रखते, क्यों देते, कैसे देते, कब को देते, किसको देते, क्यों नहीं देते, ये सब कुछ किसी को नहीं मालूम। सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म देके भर के यहाँ सबमिट कर दीजिए, कोई बात नहीं। यही एप्लीकेशन फॉर्म है, ये भी भर सकते हैं। कलर भी भर सकते हैं, ये भी भर सकते हैं। इसमें कुछ आपके पास रेशन कार्ड नहीं है तो रेशन कार्ड चाहिए, न्यू रेशन कार्ड बोल के यहाँ लिख दीजिए। ऐसा न्यू रेशन कार्ड रिक्वेस्ट है बोल के लिख दीजिए। अगर आपके पास रेशन कार्ड है पहले से तो यहाँ आपका वो रेशन कार्ड का नंबर लिख दीजिए। और कुछ लोग क्या करे, रेशन कार्ड अप्लाई किए, पुराने सरकार रहते ना तब अप्लाई किए तो उनको एक नंबर मिला, वो ऑनलाइन नंबर, वो ऑनलाइन नंबर लिख दीजिए यहाँ ब्रैकेट में। ये ऐसा 3 ऑप्शंस। और एक आपका पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड तो रहेगा ना अम्मा, आधार कार्ड का डिटेल्स लिख दीजिए। आपकी बच्ची है ना, वो बच्ची का नाम भी यहाँ लिख दीजिए। आप बड़े हैं ना घर का, आपका नाम यहाँ लिख दीजिए और आपके बच्ची का नाम यहाँ लिख दीजिए। उसमें डिटेल्स देने की कोई जरूरत नहीं है। बच्ची का सिर्फ आधार कार्ड जीरोक्स करके इसमें पिन कर दीजिए। वो आधार कार्ड हमारे एड्रेस है ना, वो वही एड्रेस लिख दीजिए। वो सब पूरा होने के बाद ये स्लिप है ना अम्मा, ये स्लिप आपको कट करके यहाँ स्टैम्प डलवा के या सिग्नेचर डाल के आपको देते। ये स्लिप आपके पास रख दीजिए। और इसमें जो फोन नंबर लिखते हैं ना, वो परमानेंट फोन नंबर लिख दीजिए। फॉर्म्स हो जाने के बाद एम्प्लॉय न्यू रेशन कार्ड नहीं है, चाहिए बोले तो न्यू रेशन कार्ड बोल के यहाँ लिख दीजिए रिक्वेस्ट। और क्या हुआ, रेशन कार्ड है लेकिन शादियां हो गई बच्चों की, बहू आ गई घर में, बच्चे पैदा हो गए, उसको ऐड करना बोले तो यहाँ एक ब्रैकेट में लिख दीजिए ऐड फैमिली मेंबर्स बोल के लिख दीजिए। अपडेट करना बोल के लिख दीजिए। अगर आपके पास वो आईडी है तो आईडी लिख दीजिए, बस ऐसे ही। ये अप्लाई करने के बाद उनको देते तो इसको स्क्रूटनी करके वो एलिजिबिलिटी वो सब देख के बाद में आपके घर को 1 महीना कुछ होगा शायद आने के बाद, तब आपको आके पूछेंगे। तो जैसा कि आपने देखा नाजरीन, क्या हो रहा है देश और दुनिया में। इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें दीजिए इजाज़त।